90.4 एफएम रेडियो चिनार से मैं हूं साहिल मुजफ्फर। जैसा आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से एक ऐसा इनिशिएटिव कश्मीर में शुरू हुआ है जिसके चर्चे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हर जगह पे हैं और इस इनिशिएटिव का नाम है आर्मी HPCL सुपर 50, जहां पे 50 स्टूडेंट्स की कोचिंग, रेजिडेंशियल कोचिंग करवाई जाती है। और इस सिलसिले में कुछ स्टूडेंट्स से आपकी मुलाकात हमने रिसेंटली करवाई, बट आज हमने मैनेजमेंट को ही यहाँ पे बुलाया है एंड लेट्स हेयर फ्रॉम देम कि व्हाट दिस इनिशिएटिव इज ऑल अबाउट। आज हमारे साथ है रीजनल हेड श्रीनगर सेंटर के मिस्टर वाहिद फारूक, आपका हम वेलकम करते हैं। थैंक यू फॉर और हमारी एकेडमिक ऑफिसर प्रियंका भी है, इनसे भी बात करेंगे। तो वाहिद साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, दिस इनिशिएटिव हैज़ बीन अमेजिंग और जो रिजल्ट्स की बात करेंगे, it speaks volumes about Super 50. I want to know in detail from you what this concept is all about और इसकी शुरुआत कब हुई, कितने बैचेस आज तक आपने वहाँ से पास आउट किए हैं, and as a head, how is the feeling and how is the josh? Thank you for having me here and talking about the concept. It started in 2018 with a batch of 30 students, and need of the hour was like financially deprived society hai, and when you talk about coaching for NEET and JEE examination, it means that you have to spend lakhs of Right, absolutely. rupees in so then this concept was came up in the minds of Hindustan Petroleum Corporation Limited, Indian Army's 15 Corps, and NIDO, National Integrity and Educational Development Organization, and they kick-started this project under which 30 underprivileged kids from financially weak families were given free of cost 1 year coaching, mentoring, training for residential coaching, for NEET and JEE examinations. And I will be telling you about what facilities are being provided in this residential coaching, like apart from teacher availability 24/7, you have a 24/7 surveillance on you. Okay. And the most important thing that students are kept aloof from social media and mobile phones. That's something which is really great. I think this makes our project something different from rest of the coachings. Okay. And not only the coaching is provided to these kids, both male and female, all round development is being focused, Right. so that they can be job ready after spending 1 year with us. And since 2018 we have catered 7 batches, and currently we are running 7th batch, and our location is in Hub Chinar Iqbal Park, Srinagar. So but there is one question in my mind. Yeah. When you started, tab ye Super 30 tha. हाँ. First batch was it was Super 30. Then Yeah. what motivated you Super 30 को Super 50 में हम convert करें? Was it the response or was it something in the mind of the management कि हमें ये करना है? I will be telling you, like it started with the Super 30, and the 30 were the boys only. Okay. And 2018, 19 and 20 we continued with the 30 boys only. But we were getting a lot of pressure from the society as well, because girls were not included in this. Okay, you increase the capacity. Yeah, Seats and, बढ़ा दीजिए. We are very thankful to Indian Army support, Hindustan Petroleum Corporation Limited, and we as an NGO have been always at the forefront, whether it has been the educational front or the healthcare front. So we took this challenge, and we motivated the parents जिनके पास female candidates जिनके पास इनको आप भेज दीजिए. हाँ, हायर सेकेंडरीज में, JNVs में. तो we communicated with them, and they were very much enthusiastic, and they were very much confident कि नहीं, हमें अपनी female kids भी वहाँ भेजनी है. Right. And in the year 2020 it get converted from Super 30 to Super 50, Okay. just with the inclusion of 20 girls. Okay. And now it is being run under the banner of Super 50, so we are having 30 boys and 20 girls. See, I have visited that center myself. The amazing part of that is कि जब वहाँ से फार फ्लंग एरिया से जो बच्चे आते हैं, घर की डिस्ट्रैक्शन से दूर, सोशल मीडिया से दूर और इस दुनिया की इस भाग दौड़ से दूर, उनका एक फोकस रहता है, डेडिकेशन रहता है, क्योंकि उन्होंने लाइफ में एक गोल सेट किया होता है. और आपकी डायनेमिक लीडरशिप में जो टीम है वहाँ पे, जो फैकल्टी है वहाँ पे, दिन रात मेहनत करके इन बच्चों के साथ बैठ के इनके वो जो उन्होंने ख्वाब बुने होते हैं अपने बचपन में, उनको पूरा करने में आप इनकी मदद करते हैं. अपार्ट फ्रॉम योर जॉब,
इसमें कहीं ना कहीं वो इमोशनल अटैचमेंट भी होगी। एंड आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि वो बॉन्ड वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ, फैकल्टी के साथ या इनकी फैमिलीज बैक होम, वो बॉन्ड कैसा है आर्मी HPCL सुपर 50 में? बॉन्ड की आपने बात की, जब हमारे पास बच्चे आते हैं एंड दे स्पेंड 1 ईयर विद अस, राइट। एंड स्टूडेंट्स में लाइक एक 1 ईयर में हमारे पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है, फेस्टिवल, डिफरेंट काइंड ऑफ फेस्टिवल्स right. आते हैं, लाइक होली, दिवाली, क्रिसमस, एवरी फेस्टिवल इज बीइंग सेलिब्रेटेड देयर, 26 Jan, 15 Jan, Eid celebration. Eid celebration, everything is being celebrated. We have ups and downs because 1 year is a huge Yes, challenges बहुत सारे होते हैं। तो when you face those challenges and when you cope up with the difficulties and when you are with अप्स के साथ भी बच्चों के साथ और डाउन्स के साथ भी बच्चों, सो सोसाइटी एक इमोशनल बॉन्ड बन ही जाता है, राइट। एंड वो तो चलो आउट ऑफ द बॉक्स है हमारे लिए, बट द थिंग इज कि वी की फोकस्ड कि इनका एकेडमिक्स हैम्पर ना हो जाए। राइट। आई विल बी टेलिंग यू दैट वन ऑफ द USP ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज दैट जो टीचर अवेलेबिलिटी है वो 24/7 है, एज टीचर्स ऑल्सो स्टे इनसाइड द कैंपस, सो लाइक एंड बेस्ट टीचर्स फ्रॉम द कंट्री। हाँ, बेस्ट टीचर्स फ्रॉम द कंट्री, एंड उनकी भी सिलेक्शन हमारे पास एक क्राइटेरिया बेंचमार्क होता है, तो देन दे हैव टू सेटिस्फाई दोज बेंचमार्क्स, ओनली देन दे आर selected for these kind of, not only this is the teaching role, actually एक टीचर को एज अ मेंटर, एज अ गाइड, एज अ पेरेंट का रोल निभाना पड़ता है इन बच्चों के साथ, एंड व्हेन यू आर हैविंग अ फीमेल किड्स देन यू हैव टू बी make extra care because you are dealing with the teenage kids, right. so these are the things, and plus one USP जो इस प्रोजेक्ट की है कि जैसे मैंने आपको कहा कि 24x सर्वेलेंस, लाइक हमारे पास मैथ्स के बंदे हैं, हमारे पास मैनेजमेंट के बंदे हैं, टीचर्स है, तो जब भी बच्चों को देखते हैं कि भाई तुम पढ़ो, क्योंकि वहाँ पर उनको कुछ पे करना नहीं है, right. वहाँ पर उनसे कुछ मेहनत करनी नहीं है, द ओनली थिंग दे हैव टू डू इज टू एक साल जी लगा के मेहनत कर लो, पढ़ लो, yes. अपनी सिलेक्शन ले लो, बस अपने माँ बाप का प्राउड बन जाओ और निकल जाओ। अच्छा वाहिद साहब, एक और चीज़ मेरे माइंड में आ रही है कि ये थोड़ी अंदर की बात मैं आपसे पूछूंगा कि अगर हम सुपर 50 की बात करें, ओवर द इयर्स वी हैव सीन 100% रिजल्ट। बाकी भी कोचिंग सेंटर्स है अक्रॉस द कंट्री, बट हर जगह पे 100% रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो जैसे आपने USP की बात की, फॉर मी दिस इज अगेन वन USP कि आपके जो सेंटर के 100% रिजल्ट्स आते हैं, एंड इट्स लाइक इन द बज, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट सुपर 50। 6-7 हज़ार बच्चे अप्लाई करते हैं और उसमें से 50 जो टॉप लेवल के जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, जिनका IQ अच्छा होता है, उनको आप वहाँ पे लेते हैं। व्हाट इज द वो अंदर की बात क्या है? How you manage this consistency 100% results over the years? See, it's not managed. ये start होता है हमारे awareness program से. Okay. The backbone of this success is the awareness program. Right. Awareness program हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं. Awareness program हमारे कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के हर एक कोने में होते हैं. जी. तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारे नोडल ऑफिसर्स बनते हैं, नोडल पॉइंट्स बनते हैं, जहाँ पर एक हैंडी इंफॉर्मेशन उन बच्चों को दिया जाता है. जी. अभी हम डिस्ट्रिक्ट बारामूला कुपवारा के आसपास बैठे हैं, तो हमारे पास ये भी एक नोडल पॉइंट है, गर्ल्स हायर सेकेंडरी हंदवारा रहता है हमारा, JNV कुपवारा रहता है हमारा, तो जहाँ से बच्चे इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, बिकॉज वहाँ के बच्चे भी हमारे एलुमनाई रह चुके हैं, एंड दे हैव बीन सिलेक्टेड इन डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस एंड डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, सो इट्स अ माउथ पीस, एक माउथ पीस बन जाता है, वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट हो जाती है, एंड यू विल सी लाइक इट्स नॉट समथिंग कि अगर हम बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करें, दे आर हैविंग दैट बिग होर्डिंग्स एंड एवरीथिंग, सोशल मीडिया, यहाँ पर हमारे पास यू गो टू द ग्रॉस रूट लेवल, वहाँ से आप टैलेंट उठा के उसको नर्चर करके आगे आप उसको पहुँचाते हैं। वी डोंट हैव thousands of kids, we have only 50 kids, and only 50 kids के ऊपर हमें पूरा साल इन्वेस्ट करना पड़ता है, पूरी मेहनत करनी पड़ती है, तो रिजल्ट तो आना ही आना है, एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन आर्मी एंड नीडो जो एग्जीक्यूटिंग पार्टनर है, ट्रेनिंग पार्टनर है, दैट वी हैव बीन मेंटेनिंग दैट लेगेसी ऑफ अचीविंग 100% रिजल्ट्स, एंड विदाउट एनी सोशल मीडिया बज़, हाँ, नथिंग। हाँ, ठीक है, बच्चों का एक सोसाइटी का इम्पैक्ट हो रहा है, उनका भला हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, दैट इज द पॉइंट कि एक सोशल कॉज जो चल रहा है
उसका जो हमारा मोटिव होता है वो अचीव हो जाता I है must tell you कि you guys are contributing a lot to the society of Kashmir, क्योंकि जिन एरियाज से आप बच्चों को उठा के इस सेंटर में वहाँ पे उनको ट्रेन करते हैं कैसे एग्जाम क्रैक करना है, प्रोबेबली मुझे लगता है कि शायद उनके पास ऐसे एवेन्यूज़ नहीं हैं कि वो टॉप नॉच जो कोचिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे जाएं और वहाँ से कोचिंग लें। लेकिन आपका जो ये काम है, आप उस पुअर फैमिली से उस गरीब बच्चे को भी उठा के लाते हैं और उसको भी जो उसने सपना देखा है उसको आप ये एहसास दिलाते हैं कि यू कैन ऑल्सो डू इट। यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम फ्रॉम रेडियो चिनार, क्योंकि ऐसे ही लोग जो हमारी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, दे आर द रियल हीरोज। Thank you for that, and I will be sharing one story. Like in every batch हमारे पास ऐसी स्टोरीज आती है, ऐसी हमारे पास पेरेंट्स आते हैं कि उनके पास शाम का खाना होगा नहीं होगा, दैट्स नॉट श्योर फॉर श्योर, बट ठीक है उनका बच्चा अब पूरी मेहनत करके पूरा, मतलब आपने कहा टॉप नॉच कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो तो उस चीज़ का नाम भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल। तो कोचिंग क्या होती है, बट हाँ बच्चे के पास पढ़ने का लगन था, इंटरेस्ट था, उसके पास मोटिवेशन थी, उसने अपना एक टारगेट सेट करके रखा था, बस हमने नरिशमेंट कर दी, हमने पॉलिश कर दी पूरे साल। एंड हमारे साथ साथ पूरी टीम ने आर्मी के हमारे जो हमारे हेडक्वार्टर 10 सेक्टर के अंडर चलता है वो रेगुलरली आते, उनको मोटिवेट करते, मोटिवेशनल स्पीकर्स आते, जस्ट बिकॉज कि उन बच्चों का जो मोटिवेशन है कभी डाउन ना हो जाए। एंड प्लस मैंने आपको एक बात कहा कि उनको हम वी कीप स्टूडेंट्स अलो फ्रॉम सोशल मीडिया एंड मोबाइल फोन्स, दैट्स अ बिग टास्क इन दिस टाइम। आज के एरा में एक टीनेज बच्चा मोबाइल से, सोशल मीडिया से दूर है, तो मुझे लगता है कि he or she can achieve anything in the world. The only thing is that if he has that perseverance, if he has that confidence, if he has that motivation, only then he or she can achieve. Absolutely. Otherwise he is just wasting his time. And बाहर भी पैसा देकर अगर वो उस मेहनत से पढ़ेगा नहीं, then he is wasting his time, his parents' money. बिल्कुल, मैंने भी बहुत सारे ऐसे जो सुपर 50 के स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ से पास आउट हुए अलुमनाई, उनके साथ मैंने बात की। आई हर्ड लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड इमोशनल कहीं पे वो हो गए और उन्होंने अपने घर के हालात हमसे बयान किए ऑन एयर। उन्होंने लोगों को बताया कि हमने कहाँ से अपनी शुरुआत की। एंड टुडे लॉट ऑफ देम आर pursuing MBBS in different reputed colleges of the country, and credit goes to Army HPCL, क्योंकि सपना तो सभी देखते हैं लेकिन कोई वो उंगली पकड़ने वाला होना चाहिए जो उनको आगे राह दिखाए, एंड यू गाइज आर डूइंग इट। अगर हम इस साल की बात करें, उससे पहले मैं ये पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि इतने सालों में डू यू हैव अ डेटा कि कितने स्टूडेंट्स आर्मी HPCL सुपर 50 से MBBS या JEE या BDS में सिलेक्ट हुए हैं? I will be very happy to share some yes, stats please. with you. See, if we talk about, like I will be telling you that we are having 20 centers like this across the country. Okay. And talking about the Jammu and Kashmir, we are running one center in Leh, one in Kargil, one in Rajouri, one in Srinagar, and one in Aknoor as well. Okay. So it's the data of all the centers. But if we talk about the Army HPCL Kashmir Super 50, and from batch 1 we have 30 kids. Okay. And out of 30, 17 got MBBS, 17 great. kids, 2 BDS, 3 BTech, and the rest of the other branch of cost engineering colleges. बैच 2 में हमारे 12, जो मतलब मोटा मोटा जो क्रक्स होता है, पिंचिंग पॉइंट होता है, बैच 2 में हमारे 12 MBBS और 2 BDS हो गए। बैच 3 में हमारे 19 MBBS and 3 BDS. Okay. एंड बैच 4 से हमारे 50 हो गए। Okay. तो उस टाइम हमारे 29 MBBS हो गए आउट ऑफ 50. Okay. एंड 15 BDS. दैट मींस इट्स, और जो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है, दे गॉट एडमिशन लाइक इन एम्स नर्सिंग, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, एंड डिस्कॉस्ट में बच्चे अपना ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी। इन बैच 5 वी हैव 21 MBBS and 17 BDS. And in batch 6 we have 15 MBBS and 8 BDS. Okay, and I will be very happy कि जो हमारे बच्चे हैं, we have our presence in I think every GMC of the That's country, really great. of Jammu and Kashmir. And apart from the GMC, we have our presence at AIMS Jammu, AIMS Rishikesh, and Lady Hardingley College. So हर जगह पे अपनी छाप आपने छोड़ दी है। and Baba Farid University of Health Sciences Chandigarh. Okay. So students are going there
we people are motivating them to move outside of your state for your studies, so that when they come back they will be multicultural, Right, multi-religious, है ना, The तो overall personality will be developed. will be developed, they will be completely changed. So this is our agenda, this is our motto, to bring these kids into the mainstream by Right. imparting education, Right. quality And education. education is the key in the life. Whether आप कहीं पे भी जाए, without education इंसान को लगता है कि मैं इंसान नहीं हूँ. Because education teaches you how you become a human being, true human being, और हमारी जिम्मेदारियाँ क्या है towards our society, towards our country, और humanity के लिए education से बड़ी चीज़ कोई हो नहीं सकती. And you guys are playing your role, you guys are the true assets of our society. अगर हम इस साल की बात करें, मैं पिछले कई दिनों से देख रहा था कि अभी फिर से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है नेक्स्ट बैच के लिए 2025 के लिए. मैं ब्रीफली जानना चाहूँगा व्हाट इज़ द प्रोसेस एंड व्हाट्स द क्लोजिंग डेट, और रजिस्ट्रेशन कैसे बच्चे कर सकते हैं जो भी आपको रेडियो चिनार के सोशल मीडिया हैंडल से अक्रॉस द वर्ल्ड देख रहे हैं, बट कश्मीर के पर्टिकुलरली जो फार फ्लंग एरियाज में हैं वहाँ से भी आपको देख रहे हैं, तो प्लीज जो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, इट हैज बीन ऑलरेडी स्टार्टेड, राइट, एंड वी आर शेयरिंग आवर रजिस्ट्रेशन पैम्पलेट्स थ्रू आवर माउथ पीसेस, जो मैं कह रहा हूँ, जी जी as बिल्कुल, we don't use much social media and we don't keep that abuzz, so newspapers and through your medium yes yes, it will be shared, and it is being shared in the past as well, and plus the registration process will go on till April. till And April. after April written examinations will be held, and जो बच्चे अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बन रहा है. देन हमारे पास जब रजिस्ट्रेशंस क्लोज हो जाएंगी तो एज पर देयर डिस्ट्रिक्ट दे विल बी अलॉटेड एनी नोडल पॉइंट जहाँ पर उनका रिटन एग्जामिनेशन होगा. तो आफ्टर द रिटन एग्जामिनेशंस, सो एवरी कम्युनिकेशन विल बी communicated to them Right, accordingly after written examinations. So like I will be telling you that we are having a 6 step of process of enrolling the students, like Okay. starting from the awareness program, registration process, then written examinations, interview process, documentation, and final induction of the students. And in the documentation process we make sure that the student should belong from economically weaker section of the society, Okay. because it's not meant for those financially well off children belonging from the Those who can financially- afford somewhere else. Yes. Basically the motive is to uplift the marginalized society of the Jammu and Kashmir. So we are doing our effort, and through your medium, through Indian Army support, we are pursuing our goal. And as a Kashmiri, as a local Kashmiri, it's a big thing. If we अगर हम लोगों को आ जाए तो we can achieve much bigger things with these kind of projects. Absolutely, it's amazing. और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Any message for the students जो अभी, because you are the head, or you will be the point of contact, anything from your end? My only message is any student is like it doesn't matter whether आप कहाँ पर coaching कर रहे हैं. The only thing matters is कि keep trying, keep the struggle continuing until the time success comes to you, and always keep your heads high. एंड मैं अपने बच्चों को भी अपने सेंटर पे, जितने भी हमारे सेंटर्स हैं, मैं वहाँ विजिट करता हूँ तो उनको भी बोलता हूँ कि भाई जहाँ तुम्हारा बेड है उसके सामने अपने फादर और मदर की फ़ोटो लगा दो. वो कह रहे सर वहाँ तो मुझे फिजिक्स के फार्मूला, केमिस्ट्री के फार्मूला लगाने. मैंने कहा ठीक है, एक छोटा सा पासपोर्ट साइज फोटो लगा दो उसका. बोला सर क्यों? मैंने बोला तुम्हें शाम को जब तुम खाना खाएगा तो आप बेड पे सो जाओगे, तो जब आप उठोगे या सो जाओगे, जब भी तुम्हारे पास वो डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, ये फोटो देख लेना एक बार, ये आपको सही ट्रैक पे वापस लाएगा. हाँ, किसी को कहने की कोई जरूरत ही नहीं है. तो अभी बच्चों ने वो बड़े फोटोग्राफ्स अपने पेरेंट्स के लगा के रखे. दैट इज अ काइंड ऑफ मोटिवेशन टू देम, बिकॉज बाय वर्ड्स हाउ मच एक साल हम कितना ही कहें, बट जो एक मेन फोर्स होता है वो पेरेंटल फोर्स होता है. तो वो एक
चीज़ इम्पोर्टेंट बिल्कुल। है और वो बच्चों ने वहाँ लगा के रखी है अपने फार्मूलाज के बीच में, अपनी स्टडी प्लेसेस के बीच जी, में, जी। टू कीप देम मोटिवेटेड। एब्सोल्युटली, इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू। और इस कॉन्वर्जेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज प्रियंका इज विद अस, इनसे भी बात करेंगे। सो नाउ वी हैव वन मोर गेस्ट विद अस, Priyanka. She is academic officer, Yes. right? So Priyanka, I want to know from you, academics में आप क्या देखती हैं, and what is the academics of Super 50 all about? ओके सर। सर मेरा काम ये रहता है कि मैं पूरा ऑब्जर्व करूं कि क्लासेस टाइम से हो रही है कि नहीं हो रही है, और पेपर्स कैसे कंडक्ट कर रहे हैं। क्योंकि हमारा ऐसा रहता है सर कि जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस, तो हमारा एमटीज मॉड्यूल टेस्ट होते हैं जी। जो अल्टरनेटिव संडे पे होते हैं आपके सिलेबस के कवर करने के साथ साथ। उसके बाद हमारा नवंबर या दिसंबर में जो है हमारा ये सिलेबस खत्म हो जाता है। उसके बाद हम डाउट क्लासेस लेते हैं, उनकी रिविजन्स करवाते हैं, और अगर कोई बच्चा किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कमजोर है या उसको अच्छे से वो नहीं आ रहा है, तो हम एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाते हैं। Okay. और फिर उसी टाइम पे हमारे पीटीज भी चलते हैं। Okay. रिवीजन एक फास्ट ट्रैक प्लान चलता है, हर दिन एक आपका एक चैप्टर होता है जिसका टेस्ट जी। होता है, और उसके साथ साथ आपका संडेज को पीटीज रहते हैं। ठीक। तो जब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, रिवीजन भी हमारी, तो हम अप्रैल से इनके फुल टेस्ट शुरू करते हैं। जी। पहले 11th का, फिर 12th का, फिर उसके बाद 11 12 पूरे फुल टेस्ट इनके लेते हैं। Okay. और हमारे साथ पे रिवीजन और डाउट सेशंस भी सो ये जो सारी चीजें हैं ये आपकी सुपरविजन में हो रहा है। जी। तो गाइज वी कैन से शी इज द सीसीटीवी ऑफ आर्मी HPCL सुपर 50, क्योंकि इनकी नज़र से, बाबू भाई की नज़र से कोई बच नहीं सकता है, एंड इट्स ग्रेट। अच्छा, अब आपकी मैं एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा। यू हैव बीन वर्किंग विद दीज स्टूडेंट्स एंड स्टाफ वेरी क्लोजली। Yes. कैसा लगता है आपको? क्या माहौल है, क्या वो फीलिंग्स रहती है, कितनी एक्साइटमेंट रहती है बच्चों की एंड एज वेल एज स्टाफ की, कि इन बच्चों के साथ बैठ के इन्होंने जो उड़ान भरनी है आगे, उसमें हम इनका साथ दें? सर जैसे कि सर ने भी बताया था कि 24/7 हम लोग उनके साथ रहते हैं। जी। टीचर्स, स्टाफ, हर कोई उनके साथ रहता है। मैथ्स वार्डन्स हैं, सब उनके साथ रहते हैं, तो उनको एक प्रॉपर गाइडेंस तो मिलती ही है। 11 से 12 लोग उनके साथ हैं, और वो अपने बच्चों की तरह उनको ट्रीट करें कि क्या बात है। हमें इनको कहीं ना कहीं देखना है, अच्छी तरीके से खुशी होती है सर। तो हम तो कोशिश करते हैं पूरी कि उनके साथ रहे, उनको अच्छे से मोटिवेट करें, उनको एक अच्छा राह दिखाएं, वे दिखाएं कि वो एक अच्छी नीट की कोचिंग भी करें, और उनका जो इमोशनल बैलेंस है वो भी बना रहे। घर से इतना दूर रह रहे तो थोड़ा इमोशनली भी वो अच्छे से बैलेंस। बिल्कुल। जो भी आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे देख रहे हैं, जो आपका अभी बैच वहाँ पे है, जी। वहाँ से निकल के देखेंगे ये इंटरव्यू, और या जो अभी आने वाले हैं वो भी देख रहे हैं, जी। क्या कहना चाहेंगी आप उनको अपने क्लोजिंग मैसेजेस में? व्हाट वुड बी योर गोल्डन वर्ड्स फॉर द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग यू ऑन द डिजिटल हैंडल्स ऑफ रेडियो चिनार? सर मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि मेहनत करते रहें जी। सर, क्योंकि आप जब किसी गोल को लेते हैं तो बहुत सारी उसमें आपकी जो है आते मुसीबतें आती हैं, या आप Challenges बहुत आते हैं। challenges आते हैं बहुत सारे। तो आपको हार नहीं माननी चाहिए, आप कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स की, सबकी बहुत उम्मीदें होती है आपसे। तो कोशिश करते रहें। और हमारे सर जो हमारा नीडो, उसका स्लोगन भी है कि व्हेन स्काई आर ग्रे देन सन शाइन्स। तो क्या बात है, सर अगर मुसीबतें हैं तो ही चमकने में मजा है। क्या बात तो है। अच्छे से पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ें। तो आपकी इन बातों से मेरे जहन में एक शेर आ रहा है, तो उसी पे हम आज की इस कॉन्वर्जेशन को क्लोज करते हैं। वो कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आपका हौसला, उन बच्चों का हौसला ऐसे ही बुलंद रहे। इट वॉज एब्सोल्युटली ग्रेट इन दिस ब्यूटिफुल सनी डे। आपसे हमने बात की, और जो काम आप कर रहे हैं ये यकीनन तारीफ के लायक है। अब ऐसे ही हमारे यंगस्टर्स को मोटिवेट कीजिए, और उन्होंने जो उड़ान भरनी है बस उनका हाथ थामिए। एंड आई एम श्योर कि जो कश्मीर के हमारे बच्चे हैं वो किसी से कम नहीं है, और ये हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये प्रूव किया है कि हम दुनिया में जहाँ पे भी जाते हैं अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ते हैं। मिस्टर वाहिद, इट वाज ट्रीट एब्सोल्युटली फॉर ऑल ऑफ अस कि आपसे हमने बात की, और आने वाले दिनों में आपके जो
सेंटर के बच्चे हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज़ हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू और शेयर करेंगे। और मैं अपने व्यूवर्स को बताऊं कि ये जो अभी इनिशिएटिव है, इसमें जो प्रोसेस चल रहा है, अपने बच्चों को वहाँ पे आगे लाइए, एडमिशन प्रोसेस में हिस्सा लीजिए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हिस्सा लीजिए, एंड यू नेवर नो कि आपका बच्चा इस इंस्टीट्यूट का हिस्सा बन के अपनी ज़िंदगी की कामयाबी की दास्तान खुद अपने हाथों से लिखे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, हैव अ वंडरफुल टाइम, and ladies and gentlemen, till the time we meet again, let's separate some love and separate some smiles. This is Sahil Muzaffar signing off for the day. God bless you.